pharmacy orientation, and the objectives of which are to increase understanding of freshers about the field they are about to enter. So what are the chapter number one? It has outlined that we need to introduce and orient to the professional of pharmacy in relation to hospital pharmacy, retail pharmacy, industrial pharmacy, forensic pharmacy, and pharmaceutical education and research. But before going into the detail, let's briefly discuss about pharmacy, pharmacist, different terms relating to your field. If I introduce you people to the pharmacy profession, we all know that the word pharmacy is derived from the Greek word pharmakon, which means medicine or drug. And pharmacy is the science and technique of preparing, dispensing, and reviewing of drugs and providing additional clinical services to the patients. And it is a health profession that links science with pharmaceutical science and aims to ensure safe, effective, and affordable use of drugs. This professional practice is becoming more clinically oriented as about the drugs are now manufactured by pharmaceutical industries. Defining the pharmacy, pharmacy basically is the art and science of preparing, dispensing, and proper utilization of drugs and medicines. And pharmacy is the clinical health science that links medical sciences with chemistry. And pharmacist alone is the responsible of the starting from the production of the drugs to its end manufacturing and providing it to the end users. But I'm talking about the pharmacy and I talk about the drug. But what is a drug? If we define drug according to the FDA, that is the Food and Drug Administration Authority in United States, that is the Department of Health and Human Services, a drug is intended for the use in diagnosis, cure, mitigation. Mitigation means reducing severity or seriousness, treatment or prevention of disease. The drug may come from natural source, that may be plant, animal, or mineral. It may be a synthetic source, and it may be from a semi-synthetic source. But first of all, as you people are in first professional, you may not know the difference between a drug and medicines. We hear about a drug, and we also know the medicine. But what is the difference between drug and a medicine? If we talk about the definition, a drug is a substance that I have just told you, which acts on the body and are used for prevention, diagnosis, and treatment. And medicine is the palatable form of drug. Palatable means which you can take. Definite form and therapeutic use of treatment. पोटेंसी ड्रग की पोटेंसी जो है वो एपीआई उसको हम लोग बोलते हैं. एपीआई से मुराद होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब वो चीज जो कि मेडिसिन के अंदर आपको इफेक्ट शो करेगी. और मेडिसिन इज द पैलेटेबल फॉर्म ऑफ ड्रग जो कि आप ले सकते हैं. अमाउंट अगर ड्रग की बात करें तो ड्रग डू नॉट हैव डेफिनेट फॉर्म और डोज. अगर आपको 500 mg पैरासीटामोल चाहिए तो आप उसके डब्बे में से 500 mg की पूड़ियां बना के नहीं दे सकते किसी भी पेशेंट को, वो पैलेटेबल नहीं है. और मेडिसिन की एक डेफिनेट फॉर्म और इसके डेफिनेट डोज होती है. कंपेयर करें दोनों को तो ड्रग की ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन बट ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स. डोजेज फॉर्म, ड्रग की कोई डोजेज फॉर्म नहीं होती. डोजेज फॉर्म से मुराद है वो व्हीकल जिसके जरिए ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी. और मेडिसिन की अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म होती है, लाइक इट मे बी टैबलेट, सिरप, इमल्सन. 25 से 30 के करीब डोजेज फॉर्म में डिफरेंट वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में. इसी तरह जो ड्रग के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों हो सकते हैं, जबकि मेडिसिन के अंदर यूजुअली हम लोग जब मेडिसिन की बात करते हैं तो हम लोग उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को ज्यादा देखते हैं. कॉनोटेशन की बात करें तो जब भी हम लोग ड्रग का लफ्ज सुनते हैं, एक पर्सन जब ड्रग सुनता है, लफ्ज सुनता है, तो हम लोग उसको एक नेगेटिव सेंस में लेके आते हैं. और मेडिसिन को हम लोग हमेशा एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में लेके आते हैं कि मेडिसिन अच्छा है और ड्रग बुरा है. एज अ प्रोफेशनल हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग ने काम करना है और मेडिसिन उसकी जो है वो सिर्फ एक पैलेटेबल फॉर्म है. अदरवाइज दोनों के अंदर जो एक लेमैन के अंदर डिफरेंस है उससे हम लोगों को ज्यादा कंसर्न नहीं होता. ड्रग में बी नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक. सिमिलरली जो मेडिसिन है उसके अंदर एपीआई होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इसके अंदर एक्सीपिएंट होता है. एक्सीपिएंट से मुराद वो चीजें हैं कह लें आप, या वो इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो एपीआई को सपोर्ट करते हैं टू डिलीवर, टू एनहांस द पैलेटेबिलिटी ऑफ द ड्रग. एग्जांपल है ड्रग की पैरासीटामोल, और मेडिसिन की एग्जांपल है पेनाडोल, दैट कंटेन्स पैरासीटामोल 500 mg.
नाउ हाउ वी नेम अ ड्रग। चार किस्म के नाम होते हैं ड्रग के। एक होता है उसका केमिकल नेम, जो कि हमें बताता है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल के अंदर एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल होता है। इसी तरह उसका जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम हम लोग कंपाउंड को देते हैं जब हम लोग वो नया नया इंट्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल एन एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल को पैरासिटामोल का नाम दिया गया है। ऑफिशियल नेम वो होता है जो कि ऑफिशियल मोनोग्राफ, ऑफिशियल बुक्स के अंदर उसका नाम होता है। एक हमारे पास बुक है ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके अंदर इस ड्रग को पैरासिटामोल कहा गया है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में इसको एसिड अमाइनोफिन कहा गया है। और ब्रांड नेम के अंदर होता है कि वो ड्रग का क्या नाम है मार्केट के अंदर, जैसे पैराडोल जीएसके बना रही है, और 500 mg पैरासिटामोल पैरामोल के नाम से भी आ रही है। अगर ड्रग सब्सटेंस को एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन तक ले जाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक्टिव ड्रग सब्सटेंस लेना होता है, उसके दरमियान उसके अंदर हम लोगों ने एक्सीपिएंट्स डालने होते हैं। एक्सीपिएंट्स डालने के लिए जरूरी है कि एक्सीपिएंट्स जो है वो हमेशा इनएक्टिव हों। ये किस लिए डाले जाते हैं? ये टेक्नोलॉजिकल, बायोफार्मास्यूटिकल और स्टेबिलिटी रीजंस के लिए डाले जाते हैं, ताकि जो ड्रग है वो हमारी स्टेबल रहे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और वो हमें जो है वो एक प्रॉपर हमें डोजेज फॉर्म के साथ उसको हम लोग लेके आ सकें। इसके अंदर डाइल्यूएंट्स डाले जा सकते हैं, फिलर्स डाले जाते हैं, disintegrants, coating materials, preservatives, stabilizers, colorants और flavoring agents डाले जाते हैं। इसी तरह फॉर्म इसके बाद जब एपीआई और एक्सीपिएंट्स को हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनती है। वो मे बी टैबलेट हो, वो सिरप हो सकती है, वो एलिक्सर हो सकती है, वो कोई भी डोजेज फॉर्म हो सकती है। डोजेज फॉर्म के बाद हम लोग आते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की तरफ। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एक प्रोडक्ट होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है दैट कंटेन्स एक्टिव एंड इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स दैट आर फॉर्मुलेटेड इन अ पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म। अकॉर्डिंग जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो दो किस्म की हो सकती है। दैट मे बी मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल्स बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बनाते हैं, और दूसरी कंपाउंडेड इंडिविजुअली इन कंपाउंडिंग फार्मेसीज। समटाइम्स अगर आप बड़ी फार्मेसीज पे जाएं फजलदीन वगैरह में, तो वहाँ पे आपको एक अलग रूम मिलता है जहाँ पे काफी सारी मेडिसिन पड़ी होती हैं। उनको मिला के एक नई ड्रग बना के दी जाती है इंडिविजुअल पेशेंट को अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। समटाइम्स कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आप बना भी लें तो वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं, या वो स्टेबिलिटी रीजंस की वजह से यूज नहीं की जा सकती, तो इस वजह से हम लोग ये कंपाउंड करते हैं। स्कोप ऑफ फार्मेसी की बात करें तो आजकल ये बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले इस फार्मासिस्ट का या फार्मेसी का रोल सिर्फ कंपाउंडिंग या लेबलिंग तक होता था, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा एडवांस में चल रहा है। फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स, compounding, labeling, dispensing of drugs and devices, drug product selection and drug utilization reviews, patient monitoring and intervention, and provision of information of medicines and different devices. ये तो हो गई pharmacy. Now who is a pharmacist? A pharmacist is a graduation in doctor of pharmacy. Pharmacist is the sole responsible of medicines, right from the manufacturing, testing, clinical trials, clinical administration, dispensing it safely to the patient, and he is supposed to review the prescriptions and can suggest the necessary dosage for the patient. Sometimes इसको हम लोग बोलते हैं therapeutic drug monitoring के अंदर भी ये आता है, और individualized dosage regimen. Individualized dosage regimen का क्या मतलब है कि हर पेशेंट की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो डिफरेंट होती हैं। कुछ ड्रग्स नैरो थेराप्यूटिक इफेक्ट वाली होती हैं। फॉर नैरो थेराप्यूटिक से मुराद है कि वो बहुत उनकी जो थेराप्यूटिक विंडो है वो बहुत स्मॉल होती है, उनकी थोड़ी सी डोजेज भी मरीज को बिस्तर पे लेके जा सकती है, तो वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हम लोगों ने उसको लेके चलना होता है। लेकिन तो ये फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो पेशेंट के सारे टेस्ट वगैरह को देख के उसकी बॉडी वेट, उसके क्लियरेंसेस को, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हुए हर ड्रग की जो है उसको डोजेज बताता है कि आप कितनी डोजेज लेंगे, इस टाइम पे लेंगे। और pharmacist might pursue a specialization in almost every major disease. For example, cardiac pharmacist, oncology pharmacist, pediatric ambulatory care pharmacist, neuropharmacist, pain management, diabetes, hypertension, or simply can work as a hospital pharmacist to keep check on smooth flow of right medicines in hospital. यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों की बात की है, एक हॉस्पिटल सेटअप में
और एक क्लिनिकल सेटअप में। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट दो अलग अलग डोमेन्स हैं, उसकी डिस्कशन हम लोग आगे जाके करेंगे। और फार्मासिस्ट का आजकल जो काम है, जो आजकल इसकी पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, वो हो रही है टुवर्ड्स फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट केयर। तो फार्मासिस्ट should provide and provides counseling about drug interactions, drug food interactions, and he can work best to reduce possible side effects of medicines. अब फार्मेसी एजुकेशन में दो किस्म के हमारे पास कोर्सेज होते हैं। एक वो कोर्सेज होते हैं जो आप लोग अपने एफएससी में पढ़ रहे हैं, लाइक फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, दैट आर रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट फॉर बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी कोर्सेज। और प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मास्यूटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, डोजेज फॉर्म साइंस, फिजिकल फार्मेसी के रूल्स को अप्लाई करके हम लोग डोजेज फॉर्म बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, डोजेज फॉर्म जब लैब स्केल पे बन जाती है तो इंडस्ट्रीज के अंदर उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, के ड्रग जो है वो किस तरह बॉडी के अंदर जाके किस तरह के काम कर रही है, और हम लोगों ने उसकी डोजेज फॉर्म्स को, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये भी बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी का एक कह लें कि एक सब ब्रांच है जिसके अंदर जो भी ड्रग प्रोड्यूस हो रही है उसकी तमाम टेस्टिंग की जा रही होती है। और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग एडवांसमेंट्स पढ़ते हैं कि डोजेज फॉर्म के अंदर किस किस्म की एडवांसमेंट्स लेके आई जा सकती हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री है जो आप लोग फर्स्ट प्रोफेशनल में पढ़ रहे हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे, और फाइनल में मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है जिसमें ड्रग की प्रिपरेशन होती है। देन वी हैव मेजर स्ट्रीम फार्माकोग्नोसी, that is the study of drugs of natural origin. Similarly, pharmacology, that is the study of action of drugs, microbiology and public health, and physiology, anatomy, histology and pathology. Pharmacy practice के अंदर हम लोग mathematics, biostatistics, community pharmacy, dispensing pharmacy, hospital pharmacy, clinical pharmacy, forensic pharmacy और pharmaceutical marketing and management को देखते हैं। फार्मेसी प्रोफेशन के दो मेजर सर्विसेज होती हैं, दैट में भी ड्रग सर्विसेज और पेशेंट सर्विसेज। पेशेंट सर्विसेज में डायरेक्ट एक्टिविटीज और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज आती हैं। डायरेक्ट एक्टिविटीज में भी हमने बात की, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल, कम्युनिटी, बायोकेमिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस और इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्टिविटीज में हमारे पास ड्रग प्रमोशन, फैमिली प्लानिंग, नेशनल स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन मेजर्स आ जाती है। अब हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मास्यूटिक्स जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग फिजिकल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, अगर मैं फार्मास्यूटिक्स को आपको एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करूं तो दैट इज द टर्निंग ऑफ एनसीई, दैट इज न्यू केमिकल एंटिटी इनटू डोजेज फॉर्म। मतलब एक कोई ड्रग है जो आपके पास आई है, आपने उसको सिंपली बना कन्वर्ट करना है डोजेज फॉर्म में। ये फार्मास्यूटिक्स की मेन लाइन स्ट्रीम है। इट इज द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन एंड फार्मास्यूटिक्स डील विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्योर ड्रग सब्सटेंस इनटू डोजेज फॉर्म। इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल फार्मेसी है जो हम पढ़ेंगे, फिर डोजेज फॉर्म साइंस, और बाकी सारे उसकी जो है वो जैसे जैसे आप लोग नेक्स्ट प्रोफेशन में इंशाल्लाह होते जाएंगे, आपको आइडिया होता जाएगा कि आपने किस तरह एक नॉलेज को दूसरे नॉलेज के ऊपर अप्लाई करना है। देन वी हैव फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, वो एक ही चीज है बेसिकली कि इंक्लूडिंग एक्टिव ड्रग्स एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट। Then pharmaceutical manufacturing is the process of industrial scale synthesis of pharmaceutical drugs as a part of pharmaceutical industry. इसके अंदर हम लोग different series पढ़ते हैं, series I mean operations पढ़ते हैं like milling, granulation, coating, tablet pressing and others. Then we have physical pharmacy जो हमारा सब्जेक्ट है। अगर physical pharmacy को define करें, this subject deal with the application of physical chemical principles to problems in the pharmaceutical sciences. Basically हम लोग इसमें physical chemical principles पढ़ते हैं, like आगे हम लोगों ने पढ़ना है adsorption, ionization, colloids, emulsion, suspension, और ये सारी चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह एक प्रोसेस आपकी पूरी जो डोजेज फॉर्म है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। आपने लेट्स सपोज एक ड्रग को सिर्फ
सरफेस के ऊपर रखना है, तो उसके लिए आपको कौन से एक्सिपिएंट्स डालने हैं। अब ड्रग को तो नहीं पता कि बॉडी में जाके किसने क्या करना है, वो फार्मासिस्ट का काम है कि वो किस तरह उस चीज के साथ खेलता है, कि वो एक प्रॉपर डिजाइन करे, एक प्रॉपर उसको स्टडी करके ड्रग फॉर्मुलेशंस को और उनके डिजाइन को उसको बॉडी तक डिलीवर करने के लिए कंप्लीट उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करे। तो नाउ अगर इस डेफिनेशन की बात की जाए तो ये डेफिनेशन बेसिकली एक्सटेंड हो गई है टू टारगेटिंग ऑफ ड्रग्स एंड डिलीवरी सिस्टम टू द स्पेसिफिक साइट्स ऑफ द बॉडी। उसके अलावा फार्मेसी फिजिकल फार्मेसी इंटीग्रेट्स नॉलेज ऑफ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इट अप्लाइज देम टू द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म डेवलपमेंट। And basically, this subject provides the basics of understanding the chemical and physical phenomena that govern the in vivo and in vitro actions of pharmaceutical products. फिजिकल फार्मेसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी डोजेज फॉर्म अगर आपने कोई स्टमक में रखनी है, तो स्टमक के अंदर किस किस्म का ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आप किस किस्म की डोजेज फॉर्म बना सकते हैं कि वो जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो आपकी ऑलरेडी स्टमक के अंदर रहे। अगर आप चाहते हैं कि कोई ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन में रिलीज हो, तो फिजिकल फार्मेसी के फिनोमिनाज हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग उसको इंटेस्टाइन के अंदर जाके रिलीज कराएं। Now, what is a dosage form? A dosage form means by which drug molecules are delivered into the site of action within the body. There are 10 reasons to need of a dosage form, that is to provide accurate dose. अगर वही बात फकी वाला सिस्टम करें तो आप एक चम्मच में ज्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है। तो डोजेज फॉर्म आपको बताती है कि एक गोली के अंदर 500 mg पैरासिटामोल है और वो इतनी है, वो ज्यादा नहीं होगी। प्रोटेक्शन, डोजेज फॉर्म का एक मकसद है प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल कोटेड टैबलेट्स एंड सील्ड एम्प्यूल्स। कोटेड टैबलेट से क्या मुराद है कि अगर लेट्स सपोज मैंने अभी आज जैसे आपको बताया कि आपने एक ड्रग को कन्वर्ट करना है टुवर्ड्स, आप चाहते हैं कि वो रिलीज हो इंटेस्टाइन में, तो वो उस चीज को इंश्योर करेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर। जो ज्यादातर ड्रग्स होती हैं उनका टेस्ट या ऑर्डर में खराबी होती है, जिसको हम लोगों ने वो ठीक करना होता है। तो उसके लाइक ब्रूफन आपके पास टैबलेट है, उसके ऊपर जो पिंक कलर की कोटिंग होती है वो बेसिकली शुगर कोटिंग होती है, उसका टेस्ट मास्क करने के लिए। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज, सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशंस, controlled release medications, optimal drug action, insertion of drugs into body cavities, and use of desired vehicle for insoluble drugs. डोजेज फॉर्म की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? मेजर, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड, जबकि आप इसके अंदर फोर्थ ऐड कर सकते हैं एरोसोल्स। सॉलिड के अंदर यूनिट डोजेज फॉर्म्स में टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स और पिल्स आते हैं, और बल्क के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म्स आती हैं। इंटरनल में फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स और एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर्स। इंसुफ्लेशन, डेंटिफ्राइज, स्नफ्स एंड ईयर पाउडर्स। लिक्विड डोजेज फॉर्म दो किस्म के होते हैं, मोनोफेजिक जिसमें एक फेज होता है, like for internal use syrup, elixir, linctus and drops, and for external use is liniment, lotion, gargles, throat paints, mouth washes, sprays, eye lotions, eye drops and nasal drops. And biphasic जिसके अंदर दो phases होते हैं, we have suspension and emulsion. Semi solid के अंदर for internal use we have suppositories or pessaries, and for external use we have ointments, cream, pastes and jellies. और aerosols number 4 मैंने आपको बता दिया। Now, what are the different branches of pharmacy? अब तक जो मैंने आपको बताया था वो पेपर के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपकी अपनी नॉलेज के लिए था। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी, वो आपको पेपर में यूजुअली 5 नंबर का नोट आ सकता है। तो मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज की आप बात करें, मेजर टाइप्स की फार्मेसी की या मेन स्ट्रीम लाइन्स की, तो उसमें आता है हमारे पास मार्केटिंग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एकेडमिक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेन डोमेन्स में प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल के अंदर मेन डोमेन्स में आ जाती है हमारे पास प्रोडक्शन फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह। अगर आप इस सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी, उसके अलावा ड्रग सेल्स एंड मार्केटिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी का जिक्र है, जिनको हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है that is responsible for the production of drugs by industrial pharmacists, ensuring that they are safe, effective and of high quality. अगर इंडस्ट्रियल फार्मेसी को डिफाइन करूं मैं, तो it is the processing of drugs
from the source up to the finished product and to provide quality assured product to the professionals as well as the customer. Basically पूरा overall pharmacy का मकसद ही पेशेंट सेफ्टी है. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो यही देखनी होती है कि पेशेंट्स के लिए वो प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है. एक फार्मासिस्ट जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो हमारे पास होती हैं मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, regulatory affairs, medical script writing, manufacturing, quality control, supplying, management and दूसरे डिपार्टमेंट्स में. इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं और वो कौन से ऑपरेशंस होते हैं उनमें मिक्सिंग आती है, मिलिंग आती है, ड्राइंग और लायोफिलाइजेशन वगैरह आती है. इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की बात करें तो पर्सन हु इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट. और इसके अंदर दो किस्म की जॉब्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में प्रोडक्शन इंचार्ज, फैक्ट्री इंचार्ज, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर. इसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव्स में हमारे पास प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फार्मासिस्ट और रिसर्च फार्मासिस्ट आते हैं. और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्री के, उसके अंदर हमारे पास R&D डिपार्टमेंट, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है. उसका काम होता है फॉर्मुलेशन बनाना. अगर कोई इंडस्ट्री पहली दफा कोई फॉर्मुलेशन बना रही है तो सबसे पहले वो R&D डिपार्टमेंट में बनती है. उसके अंदर देखा जाता है API के साथ कौन कौन से एक्सीपिएंट्स डाले जा सकते हैं. उसको रीफॉर्मुलेट करना कि अगर एक एक्सीपिएंट आप चाह रहे हैं तब्दील करना, लाइक ब्रूफेन टैबलेट का कलर हमारे पास अगर पिंक है तो आपने अगर उसको डिफरेंट कलर में बनाना है तो आपको दोबारा से सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी. ड्रग एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, टेस्टिंग होती है, डिटर्मिनेट किया जाता है कि कौन सा प्रॉपर रूट रहेगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक की जाती है और उस प्रोडक्ट के अंदर मजीद इनोवेशंस लाई जाती हैं जैसा कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में होता है. एक इंडस्ट्री के अंदर आप देखें कि बहुत लिमिटेड ड्रग्स बनती हैं कि एक अगर इंडस्ट्री एक ड्रग बना रही है तो दूसरी इंडस्ट्री दूसरी बना रही है. तो R&D का काम उसी ड्रग के अंदर सारी इनोवेशन उसकी जो है वो कंपेटेबिलिटी चेक करना होता है. दूसरा डिपार्टमेंट है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल. इसके अंदर हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेक्स करते हैं रॉ मटेरियल्स पे, इंटरमीडिएट और फिनिश प्रोडक्ट्स पे. प्रोडक्ट्स पे ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं और टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि देखा जाए कि ये क्या मार्केट में भेजने के लिए ठीक भी है या नहीं. प्रोडक्शन होती है. प्रोडक्शन में आपको पता है कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन का जितना भी जो भी प्रोसीजर होता है किसी डोजेज फॉर्म बनाने का वो दिया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट में उसको लेके आया जाता है. इसी तरह नंबर 2 है हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी. अब आपको पता है कि एक हॉस्पिटल का काम होता है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द पेशेंट्स. और एक हॉस्पिटल के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. उसके अंदर जो बहुत एक सब इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में से एक जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी भी है. So pharmacists work with physician, nurses, patients and other hospital personnel. और इसका काम बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी की मेन स्ट्रीम में आता है कि तमाम मेडिकेशंस को सप्लाई करना है टू द नर्सिंग यूनिट्स. दो किस्म की सर्विसेज आती हैं, एक प्रोफेशनल सर्विसेज और एक उसकी जो एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारे पास आती है पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर पेशेंट, नर्स एंड मेडिकल स्टाफ, हाउ टू गिव देम बेसिक नॉलेज अबाउट ड्रग्स. They to give them basic knowledge about drug-food interactions, drug interactions. Next, we have poison control center activities, drug information centers, preparation of drug, patient drug use profile, parental nutrition program. ये basically होता है intravenous administration के लिए nutrition को. Sometimes जो patients नहीं ले सकते by oral route, उनके लिए जो pharmacist का काम होता है कि वो अलग से बैग तैयार करता है जिसके अंदर तमाम उसकी कैलोरीज और उसके फ्लूइड्स वगैरह होते हैं. Communicating new drug information to the hospital personnel and dispensing and research of radiopharmaceuticals, like isotopes that are bound to the biological molecules. Main activities इसकी होती हैं pharmacist की compounding, providing stock, medications, filling and labeling of all drug containers, responsibility for the professional care of the patient regarding drug use. Pharmacists are part of PTC. PTC होती है Pharmacy and Therapeutic Committee. इसका काम ये होता है कि एक ड्रग फॉर्मूलरी बनानी होती है, एक गाइड बनानी होती है जिसके अंदर आपने बताना है कि हमारे हॉस्पिटल में ये ड्रग्स अवेलेबल हैं. अगर आपने किसी डॉक्टर ने कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है तो वो काइंडली इन ड्रग्स को देखते हुए प्रिस्क्राइब करे, या उसके और फार्मासिस्ट का काम होता है तमाम इसको अमल में लेके आए. और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका. और मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी की क्या पेशेंट के साथ जो ड्रग
जा रही है, वो थेरेपी में बिल्कुल ठीक भी जा रही है ये नहीं, और क्या उसको फायदा हो भी रहा है ये नहीं। अगर फायदा हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो ड्रग को तब्दील करना है। कौन कौन से नॉलेजेस हैं जो रिक्वायर होते हैं एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को? उसे फार्माकोलॉजी का इल्म होना चाहिए, उसे कंपाउंडिंग का इल्म होना चाहिए, मैनेजमेंट और रिसर्च का इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल। जो क्लिनिकल फार्मेसी है ये 1970s में इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे पास, और सबसे पहले अगर आप 1860s में बात करें तो फार्मासिस्ट का काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग हुआ करता था। 1952 में हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिक और कम्युनिटी फार्मेसी को अलग अलग कर दिया गया। हॉस्पिटल फार्मेसी का काम उस जमाने में उन दिनों में सिर्फ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, और कम्युनिटी का सिर्फ डिस्पेंसिंग होता था कि ड्रग आई है, आपने सिर्फ उसको जो है वो डिस्पेंस करना है। 1960s में इस पैराडाइम को शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स मोर पेशेंट केयर। लाइक हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी को अलग अलग किया गया, और उसी तरफ कम्युनिटी फार्मेसी को कंसल्टिंग और डिस्पेंसिंग में लेके किया गया। अब 1990s में जितनी भी फार्मेसी का पैराडाइम है उसको शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स फार्मास्यूटिकल केयर एंड टुवर्ड्स पेशेंट केयर। और फ्यूचर डायरेक्शन इसकी है मजीद स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जो कि मैंने पहले आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस की है। Define करूँ मैं इसको तो it is a branch of pharmacy which deals with the patient care with particular emphasis on drug therapy. It is called as the pure patient oriented pharmacy. Activities क्या हैं एक pharmacist की, clinical pharmacist की? उसकी activities हैं to make round with doctors, maintain patient histories, monitor drug therapies and advise patient on drug use. ये अब रिसेंट ट्रेंड आया है यूएस में कि डॉक्टर राइट करता है प्रिस्क्रिप्शन, और फार्मासिस्ट जो है वो प्रेस्क्राइब करता है कि किस किस्म की मेडिसिन जो है वो पेशेंट के लिए ठीक रहेगी। इसी तरह जो एक वन फार्मासिस्ट फॉर 25 बेड्स या वन फार्मासिस्ट फॉर वन डॉक्टर का ट्रेंड भी बहुत इन है। पाकिस्तान में भी क्लिनिकल फार्मेसी को बहुत ज्यादा भी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। फार्मासिस्ट को फेमिलियर होना चाहिए विद डिफरेंट लैब टेस्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, सो दैट उसे पता हो कि क्या इशू है और किस किस्म की मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है। अगर एक किसी सेटअप में क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है तो उसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो ये है कि हॉस्पिटल के मोर्टेलिटी रेट्स को डिक्रीज किया जा सकता है। इसी तरह ड्रग कॉस्ट और डिक्रीज लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। ड्रग कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है कि पेनाडोल सिंपल बात करें तो ₹1 से लेकर 125 तक की भी आती है। तो अगर डॉक्टर ने कोई ऐसी जो ब्रांड लिख दिया जो कि महंगा है, तो फार्मासिस्ट को यूजुअली आइडिया होता है कि इसका सस्ता ब्रांड और इफेक्टिव ब्रांड कौन सा है, तो वो उसको प्रिस्क्राइब करके उसकी जो ड्रग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकता है। फार्मास्यूटिकल केयर एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू द पेशेंट। But there are several barriers to the clinical pharmacy practice, like lack of interest of top management, higher cost obviously, जब आप बंदे नए रखेंगे तो पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, और सीधी सी बात है other professionals are unhappy. Lack of incentive for pharmacists, और चूंकि ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती इस एरिया में फिलहाल, तो ये भी काफी इशू है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव ड्रग सेल्स एंड मार्केटिंग। इसके अंदर हमारे पास मार्केटिंग और सेल्स में सबसे पहली बात आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मार्केटिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट को मैनेज करना है। आपने ऐसी पॉलिसी सेट करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो और आपने टारगेट्स देने हैं सेल्स टीम को। फिर सेल्स टीम का काम होता है कि वो डॉक्टर्स को और दूसरे लोगों को कांटेक्ट करता है और उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उनको एक्सप्लेन करता है कि प्रोडक्ट हमारी किस बारे में है। फिर ड्रग एस्टेब्लिशमेंट का आपको पता होना चाहिए कि ड्रग एस्टेब्लिशमेंट से मुराद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है, रीपैक हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसी तरह जो ड्रग ट्रेडर है वो ड्रग प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड ओनर होता है जिसने वो ड्रग बनाई होती है, और इट ही प्रोवाइड्स प्रोडक्शन मोनोग्राफ। मोनोग्राफ से मुराद ऑफिशियल पेज है जिसके मुताबिक आपने ड्रग मैन्युफैक्चर करनी है कि उसी स्टैंडर्ड्स पे किन हालात में वो ड्रग बनेगी और क्या उसके प्रोसीजर्स होने चाहिए। इसी तरह इंपोर्टर्स वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट और फिनिश प्रोडक्ट को अपने या होलसेल प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं सबको टू द अदर कंट्रीज, और होलसेलर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं टू द लोकल एस्टैब्लिशमेंट फॉर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन होलसेल बेसिस। तो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो होलसेलर्स को देते हैं अपनी ड्रग्स जो कि रिटेलर्स के पास जाती हैं। फार्मेसी एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास फील्ड है फार्मेसी की, जिसके अंदर हमारे पास जिसको रेगुलेट हमारे फार्मेसी कॉलेजेस करते हैं।
और इसके अंदर नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है. दे गिव यू नॉलेज अबाउट डिफरेंट फिजिकल बायोलॉजिकल साइंसेज दैट अ फार्मासिस्ट शुड नो. इसके अंदर मास्टर और डॉक्टरल डिग्रीज होती हैं. अब यहाँ पे भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा एरिया होता है. अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिक्स में या एक फार्मासिस्ट के प्रोफेशन में, तो तीन जगहों पे यूजुअली होती है. एक इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको मैंने बताया कि सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो कि इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है वहां पे उनका काम हो रहा है. रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि प्रॉपर सिर्फ रिसर्च पे तवज्जो देते हैं. और हमारे पास आते हैं फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि डिस्कवरी और आइसोलेशन करते हैं न्यू ड्रग्स की फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस. इसी में जो है एमफिल और पीएचडी की जाती है. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. अभी ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों ने पीछे मैनेजमेंट की बात की है, वही है. इसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या काम होता है कि फार्मासिस्ट जो है वो मैनेजर के तौर पे काम करता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, फार्मेसीज और दूसरे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में. इसी तरह फार्मासिस्ट का काम होता है यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स और इंस्पेक्शन करना, और वर्कशॉप और सेमिनार्स फार्मासिस्ट जो है वो अरेंज करते हैं to get to know and to spread the latest information in drug treatment and technology. इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स में जितने भी हम लोगों ने बात की उन सब के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स चलती हैं. लाइक जहाँ भी ड्रग्स अवेलेबल हैं, यहाँ जहाँ भी ड्रग्स के साथ काम हो रहा है, वहाँ पे हमारे पास लाजमी तौर पर हम लोगों ने लाजमी तौर पे वहाँ पे फार्मासिस्ट जो है वो आता है. तो गवर्नमेंट सर्विसेज में हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ड्रग रजिस्ट्रेशन, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज और कंसल्टेंट के तौर पर फार्मासिस्ट काम कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव फोरेंसिक फार्मेसी. फोरेंसिक फार्मेसी सुन के हमारे जहन में दो पर्सपेक्टिव आने चाहिए. नंबर वन जो हमारी मेन स्ट्रीम है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली दिस ब्रांच ऑफ फार्मेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट फॉर्मुलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. इसके अंदर हमारे पास तमाम जो रेगुलेशंस है वो अवेलेबल है बुक में, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज. ये बुक हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ते हैं. एंड द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसिस्ट कंट्रोल एंड प्रोटेक्टेड बाय फार्मेसी एक्ट 1967. जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेगुलेशन करने में, वो होती हैं हमारे पास डिविजनल ड्रग इंस्पेक्टर्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स. Ministry of Health is responsible to issue license for launching pharmaceutical industry and process of manufacturing. इसी तरह जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, और क्वालिटी कंट्रोल कोड्स होती हैं जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. तो जो जितने भी प्रोविंसेस हैं कंट्री में, उन सब के अंदर जो है वो ड्रग कोड होते हैं. There are two types of pharmacy councils, central and provincial pharmacy council. Central pharmacy council का काम होता है कि उन्होंने तमाम कोर्सेज को रेगुलेट करना है जो पढ़ाए जा रहे हैं. उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट कमेटीज बनानी है. प्रोविंशियल का काम होता है कि रजिस्टर करना है उन्होंने फार्मासिस्ट को. ये तो है एक पर्सपेक्टिव फोरेंसिक फार्मेसी का. दूसरा पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो इट इज रिलेटेड विद द फार्मासिस्ट स्किल्स यूज्ड टू हेल्प द मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स सच एज डीएनए टेस्टिंग, सीमन टेस्टिंग और लीगल इमरजेंसीज. नेक्स्ट न्यूक्लियर फार्मेसी. इसके अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है. इट फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड फॉर ट्रीटिंग सर्टेन डिजीजेस. And similarly, nuclear pharmacists undergo additional training specifically to handle the radioactive isotopes. हॉस्पिटल में बिल्कुल अलग सेगमेंट होता है जिस हॉस्पिटल में भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, और फार्मासिस्ट को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव मेडिकल कम्युनिकेशन. ये भी एक नया ट्रेंड है, या नया तो नहीं है एज इट इज. इसके अंदर कंप्यूटर हैंडलिंग है मेडिकल डाटा की. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी. अगर आप रिटेल फार्मेसी की बात करें तो इट डील्स विद द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन. इसके अंदर दो किस्म की ब्रांचेस इसको आप कह सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी. इसके अदर नेम्स की बात करें तो इसको पहले एपोथेकेरी, ड्रगिस्ट, केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट का नया नाम है जो कि 1993 में रखा गया था. कम्युनिटी फार्मेसी को डिफाइन करें तो इट सिंबलाइजेस द एडॉप्शन ऑफ अ न्यू डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म बाय स्ट्रीट फार्मासिस्ट.
This will arouse community expectations with demand care, commitment, and excellence. And it is just not a title, basically. It demands dedication and high degree of professionalism as well as high degree of your knowledge. Similarly, community pharmacist is a professional who would be in direct access to the public and whose duties are widely sought after by the public and patients. And a community pharmacist work according to the legal and ethical guidelines to ensure that correct and safe supply of medical products to the general public. There are three types of pharmacies: chain pharmacies like Fazaldin and Sons clinics, independent pharmacies like Green Pharmacy, decent pharmacies, and according to the nature of business, they may be retail pharmacies and wholesale pharmacies. In retail pharmacies, we sell drugs directly to the end users of customers, and you need to get license from the Ministry of Health. And similarly, wholesale, it supplies drugs to the other retailers, general practitioners or hospitals, and wholesale license is also need to be obtained from the Ministry of Health. And a community pharmacist must show good communication skills, be able to listen carefully to what patient says, and be able to explain complex things and sensitive things to the general public and other healthcare professionals, in a professional and confident manner. Now one can ask that what is the difference between community pharmacy, retail pharmacy, drugstore, or a medical store? Community pharmacy is more about patient. It tries to interact with the customers of community that are coming from the community. Retail pharmacy is more about selling. Like रिटेल में ज्यादातर नहीं देखा जाता कि आपको ब्रांड दिया जा रहा है, आपको सिर्फ जो आया है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है. कम्युनिटी फार्मेसी की जब हम लोग बात करते हैं तो डेट इज मोर अबाउट पेशेंट, कि पेशेंट की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, उसको किस तरह लेके जाया जा सकता है. जो ड्रग स्टोर है वहाँ पे कोई भी फार्मासिस्ट नहीं होता, और मेडिकल स्टोर के अंदर ओटीसी ड्रग्स होती हैं. ओटीसी ड्रग्स या ओवर द काउंटर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती. आपने दो टर्म सुनी होगी, मेडिकल स्टोर एंड फार्मेसी. दोनों में फर्क होता है, दोनों की रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग हैं, दोनों के अंदर जो पर्सनल काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन का फर्क है. इसी तरह जो मेडिकल स्टोर वाले हैं या जो मेडिकल स्टोर की डिग्री होती है जिनके पास, वो हर किस्म की मेडिसिन नहीं रख सकते. वो यूजुअली शेड्यूल जी और शेड्यूल एच की मेडिसिन नहीं रख सकते. शेड्यूल जी से के अंदर हमारे पास हार्मोनल और एंटी एपिलेप्टिक और बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके लिए आपके पास आपके सामने एक प्रोफेशनल बंदे का होना जरूरी है जिसको नॉलेज है प्रॉपर उन चीज़ों का, और जो बंदा कौन होता है वो फार्मासिस्ट होता है. कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल की बात की जाए तो तीन किस्म के रोल्स होते हैं: रिटेलर, मैनेजर एंड प्रोफेशनल. रिटेलर में सिर्फ आपने देखना है कि आपको जो सर्विसेज है वो अवेलेबल है. मैनेजर रोल के अंदर आपने रिसोर्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करना है. प्रोफेशनल सर्विसेज की अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरह सपोर्ट करना है स्टाफ को और किस तरह इंश्योर करना है कि फार्मासिस्ट की जो पर्सनल सुपरविजन है वो उसके अंदर हो. उसके अलावा कुछ रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स. ये बहुत इन है आजकल. इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो अपनी नीड के, इंडिविजुअल नीड के हिसाब से मेडिसिन ले, उसको वो जो मेडिसिन है वो उसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे for an adequate period of time and at lower cost to the community. Pharmacist के other roles में हमारे पास nutritional counseling, alcohol, drug abuse and smoking cessation, individualization of drug therapy, family planning, poison prevention, control of communicable diseases, pregnancy and infant care, sexually transmitted diseases, health promotion and environmental hazards आ जाते हैं. ये सब इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं जिसके अंदर फार्मासिस्ट स्पेशलाइज कर सकता है और इनके अंदर आप जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट वाज ऑल फॉर योर चैप्टर नंबर